Assalamualaikum class 9th, hope you all will be good. Today date is 13/7/2020. It's my 18th lecture and day is Monday. We have done all chapter, we have done textbook question answers and words meaning. We are doing unit number 11, noise in the environment. And now I am going to read the theme of the unit. You have to write the question, what is the theme of the unit, noise in the environment, and then you have write the answer from the book from this part theme. The unit gives awareness about the negative impact of noise pollution on human health. So इस यूनिट में हमने नॉइज़ पोल्यूशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, मनफी असरात हैं इंसानी सेहत के ऊपर, उससे हमें आगाही हासिल हुई है, अवेयरनेस हासिल हुई है. इट डिस्क्राइब्स द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन एंड हाउ दे इफेक्ट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सो मेजर कंट्रीब्यूटर्स मीन्स मेजर रिसोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन. हमें ये बताया गया है कि शोर की आलूदगी के मेजर जो हैं या अहम तरीन जो ज़राए हैं वो क्या हैं, और उससे इंसानी सेहत पर यानी ज़हनी और जो जिस्मानी सेहत है वो किस तरह से इफ़ेक्ट होती है, मुतासर होती है. इट आल्सो outlines various solutions to combat the problem of noise pollution and it gives us suggestions also. various suggestions, बहुत सी suggestions solutions भी बताती हैं कि हमें शोर की आलूदगी से का जो मसला है उससे किस तरह फ़ाइट करना है. combat means fight. इससे हमें किस तरह से लड़ना है, उसको किस तरह से ओवरकम करना है. दैट इज़ द थीम ऑफ द यूनिट. वी हैव डन ऑल द पॉइंट्स ऑलरेडी इन द चैप्टर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर बुक एक्सरसाइज एंड कॉम्प्रीहेंशन. इट्स ऑन पेज नंबर 115. See comprehension question number A, cause, effect and solution. So in this chapter we have learned the causes of noise pollution, then effects of noise pollution and solutions of noise pollution. See the question. Do you worry about pollution? Complete the table below with your parents. List the causes of noise pollution. What are their effects? Can you think of some solutions of these problems? See, causes of pollution, effects of pollution and solution. 3 columns are given. You have to write. See, first one they have done 2 columns they have given us. We can also add more, but I have done these 2. Honking means इरिटेबली. इफ़ेक्ट्स क्या है, यानी जो हॉर्न दे रहे हैं गाड़ियों के, उसका जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि इससे जो बेचैनी पैदा होती है. स्ट्रिक्ट रूल टू चेक हॉकिंग, के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए हॉकिंग को कंट्रोल करने के लिए. सेकंड वन, कंस्ट्रक्शन वर्क इक्विपमेंट्स, मेंटल फटीग. सो इफ़ वी यूज़ कंस्ट्रक्शन वर्क इक्विपमेंट्स अ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, इट गिव्स अस मेंटल फटीग. ये हमारे दिमागी थकावट की वजह बनते हैं. सो सोल्यूशन इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क मस्ट बी फिनिश्ड रैपिडली, कि हमें कंस्ट्रक्शन वर्क को जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए. लाउड म्यूज़िक सिस्टम. सो इफ़ेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हियरिंग लॉस, यानी अगर हम ऊंचा म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे हियरिंग लॉस यानी हमें कम सुनने की बीमारी हो सकती है. डिवेलप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? Develop civic responsibilities. That is the solution. Answer the following questions. 6 questions are given in your book. Let me show you the answer. See question number 1. How do you define noise pollution? Answer is noise pollution is defined as any form of noise that disrupts the normal functioning of life. It affects unchecked, it left unchecked, it can have serious effect on the mind and body of human. Question number 2. How is transport a source of noise pollution? The answer is noise coming from different modes of transport, i.e. vehicles, airplanes, trains, ships, provides to be highly successful for human communities. Excessive use of vehicle horns is source of noise pollution. So we know about the transport, different sources of transport is discussed in the chapter and how it affects the human communities. कि शोर की वजह से ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं.
और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मीन्स बहुत ज़्यादा जो हम हॉर्न्स का यूज़ करते हैं इन व्हीकल्स, डिफरेंट जो कार्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, उनमें वो भी शोर की आलूदगी की वजह बनते हैं। हाउ इज़ कंस्ट्रक्शन वर्क आ cause of noise pollution? Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. कि शहरों में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत स्लो होता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स इज ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज़ आ बिग सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। यानी जो उनके चीरने की आवाज़ें हैं और जो ग्रिलिंग की आवाज़ है कंस्ट्रक्शन साइट पे और जो आलात इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है और नॉइस पोल्यूशन की वजह बनते हैं। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स द जनरल पब्लिक बट आल्सो इफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्क्स बाय काजिंग मेंटल फटीग। इससे ना सिर्फ जो आम पब्लिक है वो डिस्टर्ब होती है बल्कि जो वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन के लिए उनकी जो जहनी थकावट है उसकी वजह भी बनती है। हाउ इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी काजिंग पोल्यूशन? सो टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी काज नॉइस पोल्यूशन? यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी causing noise pollution, for example mobile phones, electricity generators, music systems and TV all become irritants from time to time. So all of these technologies has become irritants कि हमें परेशान कुन बनते जा रहे हैं या हमें जो है परेशान करने वाले बनते जा रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अनमॉनिटर्ड यूज़ ऑफ ऑल दीज काइंड्स मेक्स दैम पोल्यूटेंट्स कि ये जो है आलूदगी की वजह बन जाते हैं अगर हम इन्हें अनमॉनिटर्ड या अनचेक छोड़ देते हैं इन सब काइंड्स को। वाई इज़ नॉइस डेंजरस फॉर हेल्थ? नॉइस पोल्यूशन हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इट हैज़ कॉज aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, restlessness, depression and insomnia. So all of these diseases are caused due to the negative impact of noise pollution. अगर noise pollution होगी तो ये जितनी भी diseases हैं ये जो है ह्यूमन हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इंसोमीनिया कैन फर्दर लीड टू एंजाइटी, बैड टेम्पर्ड एंड इमोशनल स्ट्रेस। सो इंसोमीनिया यानी बेख्वाबी, यानी ख्वाब या सोने ना सो सकता, ठीक तरह से नींद पूरी ना होने की वजह से एंजाइटी, बैड टेम्पर्ड और इमोशनल स्ट्रेस की वजह बनते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस में रिड्यूस नॉइस coming from electric devices? So different electric devices are there and what precautions we can take to omit these noise pollution। कि noise pollution को ख़त्म करने के लिए हम इन devices को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। Listening to loud music or TV on a loud volume and mobile phones are other source of noise pollution। यानी हम ऊंची आवाज़ में TV सुनना या म्यूज़िक सुनते हैं या फ़ोन सुनते हैं, ये एक नॉइस पोल्यूशन की वजह है। For this, people need to develop some civic responsibility so that others do not get troubled। कि दूसरा जो है परेशान ना हो, इस वजह से जो शहरी जिम्मेदारियां हैं उसको पैदा करने की ज़रूरत है। Because of this careless action, office, hospitals and academic institutions should strictly prohibit the use of mobile phones ऑन कैंपसेस फॉर बेटर नॉइस मैनेजमेंट। के नॉइस को यानी शोर की आलूदगी को मैनेज करने के लिए जितने हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें स्कूल में मोबाइल फ़ोन को स्ट्रिक्टली मना किया जाए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यानी रोक दिया जाए कि वहाँ मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाना। व्हेरेवर पीपल शुड बी डिस्करेज टू स्पीक लाउडली इन दीज एरियाज़। के इन एरियाज़ में जो पीपल हैं लोगों को डिस्करेज किया जाए कि वो ऊँची आवाज़ में बात मत करें। So these are the precautions we can take to omit to reduce noise pollution in our area. I hope you have understand. This is your home task. You have to done the theme of the unit and you have to done first 6 question answer given in your book exercise and you have to learn them all. That's it. Allah Hafiz.